Dear students, it is today part third of the text short story बोली. पहले दो लेसन में हमने इसका आधा पढ़ा था. Today we will complete, and here are some words which you may not be knowing. Secure, ran or move hurriedly. Ginding, separating raw cotton from its seeds. Downcast, looking downwards. Pitaji, father in Hindi. Izzat, honor. Lamb, having defect in one leg. Confused, not understanding. Violently, impatiently, angrily. Whisper, to speak softly. कानाफूसी करना जैसे. Contempt, patient, satisfied. Rooted, unmoved. Bow, to bend. Ceremony, function. Dumb, unable to speak. Deaf, unable to listen. Humiliate, insult. Greedy, lusty, L-U-S-T-Y, unsatisfied want. Overjoyed, felt very happy. Astonished, felt very happy. These were the new words you may not be knowing. And let us proceed to lesson. इस लेसन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बोली आगे कैसे एक बोल्ड लेडी में चेंज हुई, किसका क्या रोल रहा, खुद उसका क्या रोल रहा, खुद उसकी सेटिस्फेक्शन कितनी थी, तो टीचर ने क्या रोल किया, पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस थी. The starts today's lesson when Boli repeated her name, Ba, Boo, Boo. She began to stammer. ट्राइड स्टैमर, उसने थूथली आवाज में अपना नाम बताने की कोशिश की. उस्ताद ने पूछा, लेकिन उस्ताद ने उसको इनकरेज किया. वेल डन, वेल डन. द टीचर एनकरेज्ड हर. कम ऑन नाउ द फुल नेम. कम ऑन नाउ द फुल नेम. बा भा बू भोली. एट लास्ट शी वाज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट. बहुत बड़ी कामयाबी जैसे उसको मिली अपना नाम बताने में. वेल डन. द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली. जैसे आपको कभी उस्ताद सर पे हाथ फेरता है, थोड़ा थपथपाता है, खुशी करता है, इनकरेज करता है. पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स. खौफ को दिल से निकालो, आप किसी की तरह भी बात आराम से कर सकती है. बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली, क्या सही तरीके से मैं बात कर सकती हूँ. यस यस, इट विल बी वेरी इजी. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे. विल यू कम. बोली नॉडेड. नॉडेड, सर हिलाया. बात नहीं की बल्कि सर हिलाया. सर हिलाने से उसने बताया कि मैं रोज आऊंगी. आई विल कम डेली. नो, से इट अलाउड. ये या yes, and Boli herself was astonished that she had been able to say it. Didn't I tell you? Now take this book. आप इस किताब को ले लो. अब उस्ताद ने इसके हाथ में किताब थमा दी. The book was full of nice colored pictures: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and cow, just like Lakshmi and with every picture was a word in big black letters. As you know, जैसे छोटी क्लासों की किताबों में होता है, वो आप इसी ऐसी किताब उस्ताद ने इसके हाथ में थमा दी. In 1 month you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book, then a still bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village. Then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. कुछ भी नहीं होगा, कुछ थूथलापन नहीं होगा, आप आराम से बात कर सकेगी, लेकिन आपको understand. Now go home and come back on early tomorrow morning. Boli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house had blossomed into big red flowers. Her heart was
थ्रोबिंग विथ ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ। अब इसको जिंदगी मिली, किसी ने इसके साथ बात की, किसी ने इसको हौसला दिया। बोली फेल thus the years passed. The village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at the railway station. One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambur's proposal?" अब बात चली, जब ये बड़ी हुई, बालिग हुई, बोली, तो अब बिशंबर को परेशानी हुई कि मैं इसकी शादी कर डालूं। बिशंबर एक आदमी थे, लंगड़े आदमी थे, उसने इसकी, और वो बहुत एजड भी था, तो उसने प्रपोज किया कि मैं इसकी, यस सर्टेनली। हिज वाइफ सेड, बोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ग्रूम। एक बहुत अच्छा इसको शौहर मिल जाएगा, इसकी बड़ी दौलत है, बड़ा कारोबार है। ए बिग शॉप, ए हाउस ऑफ हिज ओन, दुकान भी है, बड़ा मकान भी है। आई हियर सेवरल थाउजेंड इन बैंक। मोरओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी। वो कोई जहीज वगैरह भी, दाज वगैरह भी नहीं मांगता है, कोई डोरी भी नहीं मांगता है, इसलिए हमें इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट इज राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, you know, almost the same age as I am. आप जानते हैं कि ये बोली की उम्र ज्यादा नहीं है और बिशंबर की उम्र मेरी उम्र के बराबर है। He also limps, वो लंगड़ाता भी है। Moreover, the children from his first wife are quite grown up. उसकी पहली बीवी के बच्चे जो हैं वो बहुत ही बालिग हैं, बड़े हैं, वो मानो बोली के बराबर है। So what does it matter? His wife replied, 45 or 50, it is no great age for a man. उसकी उम्र 40 या 45 साल होगी, तो ये कोई ज्यादा उम्र आदमी के लिए नहीं है, इसमें शादी करता है। We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. If we don't accept his proposal, she may remain unmarried all her life. Yes, but I wonder what Boli will say. What will the witless one say? She is like a dumb cow. Maybe you are right. मट्टो रामलाल बताया सही है, वो एक गूंगी बैरी है, वो कोई बात भी नहीं करेगी, उसकी शादी हो जाएगी, हमारे सर से बला उतर जाएगी। ये है कंसेप्ट, दिस वाज अ कंसेप्ट ऑफ पीपल अबाउट देयर गर्ल्स। किसी तरीके से इस परेशानी को सर से उतारने की कोशिश करते थे। In the other corner of the courtyard, Boli lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. Bishambarnath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. With the bridegroom riding a decorated horse, Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. Boli's elder sister, who had come for the occasion, were envious of her luck. अब छोटी और इसकी जो बाकी बड़ी बहनें थी वो परेशान थी कि इसकी शादी किस धूमधाम से हुई। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." Boli, clad in a red silken brideless dress, was led to the bride's place near the secure fire. अब आपके सामने उनको पेश किया गया। Garland the bride, one of his friends prompted Bishambarnath. The bridegroom lifted the garland of yellow marigold. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Bishambar took a quick glance. The garland remained poised in his hands. The bride slowly pulled down the veil over the face. "Have you seen her?" said Bishambar to the friends next to him. She has pock marks on her face. अब बिशंबर ने इसके
वो चीचक के निशान इसके चेहरे पर देखे तो वो थोड़ा सा परेशान हुआ। So what you are not young either, आप भी कुछ छोटे नहीं है। आपकी इसकी उम्र अगर 20 साल होगी तो आपकी उम्र 50 साल है। अगर उसकी कोई खराबी है तो आपकी भी इतनी खराबी है। Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. आप उसको 5,000 Ramlal went and placed his turban of his honor at Bishambur's feet. Don't humiliate me, so take 2,000 rupees. मुझे इतनी बेइज्जती मत कर। उस वक्त के 5,000 तो आज के समझो 5 करोड़ के बराबर है। 5,000 नहीं, मैं 2,000 देने के लिए तैयार हूँ। इन शॉर्ट वी कैन सी, आप देखते हैं लेसन में आगे पढ़कर आपको ये पता चलेगा कि एक कन्वर्सेशन के बाद ये बोली जो है, बोली ये सब कुछ देख रही थी। उस्ताद भी कॉर्नर में एक देख रहा था कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है। तो जब इसका बाप 2,000 देने पे तैयार हुआ, बिशंबर ने कुछ भी नहीं माना, तो बोली खड़ा हुई। बोली ने क्लियर किया कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। मैं मैरिज के बगैर ही सारी उम्र रहूंगी। अपने पेरेंट्स की मैं खिदमत करूंगी। और इस स्कूल में जिसमें मैंने पढ़ा है, तो मैं इसी स्कूल में गाँव के बच्चों को पढ़ाऊंगी। 2 काम मैं अपने जिम्मे लेता हूँ। एक आई विल सर्व माई पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो मैं उनकी खिदमत करूंगी। मुझे शादी ऐसे आदमी से नहीं करनी है। और गाँव के बच्चों को उसने एक सोशल वर्क जो है, सोशल वर्क खुद से एक्सेप्ट किया कि अब मैं इसको सोशल वर्क को आगे बढ़ाऊंगी और अपने पेरेंट्स की मदद करूंगी। ये है इसका एक्चुअली कैरेक्टर स्केच बोली का। कि बोली जो एक पहले पूरी जिसको डम काउ कहा जाता था, और वो एक बोल्ड लेडी के तौर पर उभरी विद आउट। उसने जो वहां पे स्पीच फिर दी लोगों के सामने, सबके सामने। देयर वॉज नो स्लाइटेस्ट स्टैमर। अब उसकी जुबान कहीं नहीं रुकती थी। जैसे कोई बहुत बड़ा लीडर या बहुत बड़ी कोई लेडी लेक्चर दे रही थी, इसी तरह से उसने ये किया। इसके अंदर की जो सलाहियत है उसको इंस्पायर किया, उसको जिला बख्शी, उसको जिंदा किया। किसने? एक उस्ताद ने। तो आपके लिए इसमें 2 चीजें जरूरी हैं। एक ये है कि जो एटीट्यूड सोसाइटी का है टुवर्ड्स गर्ल्स, इट इज टू बी चेंज्ड। ये हमें चेंज करना चाहिए, इसको हमें देख लेना चाहिए। तो इक्वल राइट्स जो है हमें ये नहीं इग्नोर करना चाहिए कि जो कौम की बुनियाद जो है इन लड़कियों से चलती है। एक दूसरी ये है कि असातिज़ा के साथ जो असातिज़ा की मेहनत को जो सराहा नहीं जाता है, ये भी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। इसको भी देख लेना चाहिए, सोसाइटी को इसको भी देख लेना चाहिए और आपको भी इसमें देख लेना चाहिए कि असातिज़ा एक ऐसी मतलब कौम है, एक ऐसी डायनासिटी है जो अपने आप को आपके लिए कुर्बान करती है। अब आपके बस की बात है, इंसान एक साफ चिश्मे पे जाए, आधे हयात भी अगर इंसान के सामने हो तो ये फिर इंसान के बस की बात होती है, उसमें से कितना हासिल करे। आप असातिज़ा से जितनी चाहेंगे उनसे फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। उनके वो अपना खून देने के लिए तैयार है। वरना आपने वो जो पढ़ा है वो लास्ट लेसन इन द आफ्टरनून, तो अगर आप अपनी एनर्जी को सेव करते हैं, अगर आप अपनी एनर्जी को गलत यूज करते हैं, तो उस्ताद क्यों अपनी एनर्जी ज़ाया करेगा। ये एनर्जी बचा के रखनी है ताकि किसी जो पॉजिटिव एक्टिविटी में काम आए। तो अपना ख्याल रखने का। इस चैनल को भी आप मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ये नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे। तो आगे जो इसके बाद हमारा जो एबिली है तो इंशाल्लाह हम देखेंगे। मैं आपको अब एक्सरसाइज की तरफ हमें शायद जाना पड़ेगा। आगे एक लेसन पढ़ेंगे, फिर हम जो टेक्स्ट की एक्सरसाइज रह गई है तो उसके लिए आप काफी जरूर मेंटेन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।